Good afternoon, everyone. Till the last session, we had completed about the functions of commercial banks, wherein we were discussing the primary functions. Right, everyone? Now we are going to start on today with the secondary functions. So when we talk about secondary functions, when we talk about secondary, it is basically some additional benefits or some additional functions which is being performed by the commercial banks, right? We're talking about what extra they're giving us, right? It includes agency services and general utility services. Agency services are offered to the customers and general utility service are offered to the public. So when we talk about agency service, like secondary functions में आता है agency service and जनरल यूटिलिटी सर्विस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एजेंसी सर्विस कौन सी होती है? वो ऐसी सर्विस होती है जो आप अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं. जैसे कि इफ आई हैव अ बैंक अकाउंट इन आईसीआईसी बैंक, सो आई एम अ कस्टमर ऑफ आईसीआईसी बैंक, राइट? आई डोंट हैव एन अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक, so I'm not a customer of HDFC, right? So obviously the services that will be provided by ICIC to me, it will be agency services because I am the customer of ICIC. But whatever services will be provided to me by HDFC Bank, they will be general utility service because I don't have any account in there. So I am not a customer. Okay, this is something general. It is not to go into in-depth or something like this. This is just a basic that you should know what agency services are. They are basically the service that is being offered to the customers, and general utility, as the name suggests, general. General matlab it is open for all. That means it is open for the public, right? Let's proceed on to basic, additional features or the secondary functions you can say. The first one is the check facility. Now, when we talk about check, usually you must have seen your parents, carrying checkbooks if they have an account, or if not, you must have seen checks in various other, certain situations. So when we talk about a check, usually the situation comes, a question comes to our mind: कि check होता क्या? What is exactly a check? So when we talk about what check is basically nothing but a paper. Okay, this is nothing but a paper, piece of paper ही है ये, right? But it is printed by the bank. अब क्या होता है? Whenever I go, I have a bank account in a particular bank. Suppose I have, let's take the example of HDFC only. So I have a account in HDFC Bank. So what will happen? That HDFC Bank is going to provide me what? They are going to provide me the checkbook, right? Now what will happen? The bank account is going to provide me the checkbook, right? अब वो checkbook का मैं करूँगी क्या? I will be using it to transfer funds. अब उससे transfer funds कैसे होगा? या तो मैं उससे transfer करूँगी funds, या फिर मैं उससे withdraw करूँगी funds. Now let's talk about what withdrawing and exactly transfer of funds mean, right? It is basically collection of checks is an important service provided by the banks to its customers, right? अब ये जो check है मेरे पास, अब इससे क्या होगा? Suppose Anshika is there, okay? I need to transfer some funds to Anshika. Suppose I want to transfer 1,000 rupees to Ankita's bank account. Please make sure what I'm saying. Anshika's bank account, right? अब मुझे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो मैं कैसे करूँगी? I will be writing a check. Here we have certain columns. Okay, now how to fill in? इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ because it is necessary. It is actually general thing. Okay, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगी. So सबसे ऊपर होता है these are the date, month and year. हम इसको फिल करते हैं और ये सिर्फ 3 months के लिए वैलिड होते हैं. अगर सपोज मेरे को उसको पे करना है अभी, आई वांट टू पे इट इन जुलाई, सो मेरे को अभी लिखना पड़ेगा, राइट? इफ अगर मुझे उसको सपोज मेरे को सितंबर में पे करना है, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, या सो आई विल बी राइटिंग इट टुडे ओनली, सो वो वैलिड रहेगा 3 months तक, राइट? बट अगर मुझे उसे नवंबर में पे करना है और मैं अभी से उसका चेक बना रही हूँ, सो इट विल नॉट वर्क. दैट मीन्स उसकी जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ क्या होती है? सिर्फ 3 months के लिए. ओके, ये तो होगी पहली चीज. सेकेंड होता है पे. आपको नाम लिखना पड़ेगा कि आप किसको पे कर रहे हो. सो इफ आई एम सेइंग आई वांट टू पे टू अंशिका गर्ग, सो आई विल राइट पे टू अंशिका गर्ग. ओके, rupees 1,000. Suppose I want to pay 1,000 rupees to her, so what I will write? 1,000 rupees only, as in it is already filled. यहाँ पे एक और कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है अकाउंट नंबर. ओके, दिस अकाउंट नंबर इज टू बी फिल्ड. ओके, जो कि आपका ऑलरेडी चेकबुक में लिखा हुआ आता है कि आप, ये आपका नंबर है, राइट? नेक्स्ट इज ये जो कॉलम होता है यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे.
और यहाँ पे जो सिग्नेचर ऑथराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर है, मेन जो इसका रोल होगा वो क्या होगा, आपका सिग्नेचर। अगर आपके सिग्नेचर फॉर्ज करे हुए हैं या आपने गलत सिग्नेचर कर दिया तो ये चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस क्या होता है यूजुअली, अगर आपने सुना हो, चेक बाउंस का मतलब ये होता है चेक वैलिड नहीं, दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आ गई है, तो हम उसको बोलते हैं चेक बाउंस हो गया। ओके, अब व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर चेक, ये तो हो गया बेसिक हम किस लिए यूज करते हैं, राइट। अब इसमें आता है, एक होता है क्रॉस चेक और एक होता है बेरर चेक। इसका कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें मेन जो टेक्निक होती है वो क्या होता है, क्रॉस चेक का मतलब, इफ यू सी इन दिस चेक पिक्चर, ठीक है, पिक्चर लगाइए स्पेशली सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। सो इन दिस पिक्चर यू कुड सी ऊपर दो क्रॉस लगे हुए हैं एट दिस, आई शो यू विद द कर्सर, दिस these two crosses are there, right? अब ये two crosses का मतलब क्या है, it is a cross check। क्रॉस चेक का मतलब है कि ये एनकैश किया जाएगा थ्रू अकाउंट ओनली। एनकैश थ्रू अकाउंट ओनली का मतलब कि ये जो पैसे हैं 1000 रुपीज, इट विल बी शिफ्टेड टू अंशिका's बैंक अकाउंट ओनली। ऐसा नहीं कि वो जाके ये चेक बैंक में दिखाएगी तो उसको कैश मिल जाएगा, इसके बेसिस पे नहीं मिलेगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस चेक। तो यूजुअली अगर मुझे कहीं पे भी पे करने हैं पैसे और मुझे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है, सो आई विल बी पुटिंग दीज टू क्रॉस। इसका मतलब हो जाता है इट इज अ क्रॉस चेक, एंड ये आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट विड्रॉ लिक्विड कैश आउट ऑफ इट, बट इट विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा बेरर चेक। अब बेरर चेक बेसिकली कुछ नहीं होता, बेरर का मतलब है ये क्रॉस हटा दो तो ये नॉर्मल जो चेक है ये बेरर चेक हो जाता है। अब उसमें क्या होगा, उसमें ये जो 1000 रुपीज लिखे हैं, ये मैं जाके दिस चेक आई विल बी प्रेजेंटिंग इट टू द बैंक, और मैं वहां जाके उनको ये चेक दिखाऊंगी तो वो चेक ही अपने पास रख लेंगे एंड दे विल गिव मी कैश इंस्टेड ऑफ इट। तो कितने पैसे मिल जाएंगे मुझे, this much, 1000 rupees, got it? So basically what happens when this cross check is there, tab to it will be transferred to your bank account, and if no cross is there then it can be encashed at the bank counters। encash ka matlab you can get money, you can get liquid cash out of it, right? So इसमें basically अगर secondary functions आते हैं, so what you will be writing, you will be writing what exactly is check। check nothing but a piece of paper that is being printed by the bank, ठीक है, that is basically used to transfer funds, क्योंकि इसका और कोई option, इसका कोई और just wait a minute। Yes. So when we talk about a check basically, I told you what exactly it is, a piece of paper wherein transfer of funds is done, right? और इसमें two types होते हैं, पहला होता है cross check और second होता है bearer check, right everyone? So let's proceed on to the next one. Okay. The next one is basically remittance of funds. Now remittance का मतलब क्या होता है? Remittance is basically transfer of funds from one account to another is made possible by issuing demand drafts। अब demand drafts क्या होता है? जैसे कि मैंने चेक का बताया था, ठीक है, ऐसी ही एक और पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट्स। वो भी बैंक के थ्रू ही होता है। इट कैन बी डन, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू बैंक अकाउंट्स, राइट। सो अगर मेरा भी अकाउंट है और किसी और का भी अकाउंट है बैंक में, सो आई विल बी ट्रांसफरिंग फंड्स थ्रू डीडी, और डीडी इज यूजुअली ज्यादा अमाउंट का होता है। ऐसा नहीं कि 100 रुपीज मुझे ट्रांसफर करने हैं, सो आई विल बी गोइंग ऑन विद डीडी, नो। DD is basically done to transfer funds from one account to another, जिसमें की जो अमाउंट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, राइट। एंड ये क्या होता है, अब इफ यू सी दिस इज द DD, ये ऐसा DD होता है, इट्स अ पेपर अगेन। इसमें भी आपको सारी अमाउंट्स भरनी पड़ेंगी, सारे आपको डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, यू हैव टू फिल एवरीथिंग, एंड एट द एंड यू सी हियर, इसको हम बोलते हैं DD का नंबर। अब DD नंबर क्यों चाहिए होता है, बिकॉज वंस इन फ्यूचर जस्ट इन केस यू नीडेड किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या मैनिपुलेशन को चेक करने के लिए, ये DD जो नंबर होता है हम हमेशा नोट करके रखते हैं अपने पास, ताकि हम लोग को पता रहे कि क्योंकि कोई भी अगर आपको कुछ भी निकालना है कि अच्छा मुझे जानना है कि मैंने इस डेट को किसको DD डिमांड ड्राफ्ट किया था, आप बैंक में जाके डिटेल्स पूछोगे, सो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे आप हमें DD का नंबर बताइए। So when you will be telling the number of DD to that particular person, then only the things will be sorted. Okay, so ये होता है हमारा DD का नंबर, right everyone? चलो, ये तो हो गया रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ फंड्स ओनली। तो पहला और सेकंड पॉइंट दोनों लॉट ऑफ इंटरकनेक्टेड है, बट पहला वाला हम चेक
के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंड सेकेंड वाला इज बेसिकली अबाउट डीडी, राइट. लेट्स कम टू थर्ड वन. नाउ व्हाट डज थर्ड वन से? It says allied services, that is personal services. Now when we talk about personal services, इसका मतलब actually क्या है? It is basically, it includes payment of insurance premium, telephone charges, etc., and the collection of I got a doubt. See, I got a doubt from Ankita. Ankita, once I complete this topic, no, I'll take up your doubt. Okay. Yeah. So let's get started. It says it includes payment of insurance premium, telephone charges, etc., and the collection of dividend and interest. अब इसका मतलब क्या होता है? Allied services, that means personal services. जैसे कि I told you, हमें home loan लेना होता है, राइट. हमने लोन्स के बारे में बात करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स होते हैं. सो जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर लोन की, राइट, हमें हाउस लोन लेना है, या मुझे एजुकेशन लोन लेना है, अपने एजुकेशन के लिए मुझे आगे के लिए लोन लेना है, या सपोज मुझे अपने टेलीफोन चार्जेस पे करने हैं. सो मैं क्या करती हूँ? यूजुअली इफ यू सी इन पेटीएम, दिस इज दैट. If you have seen what happens in Paytm, we link the this bank account with Paytm. Paytm में पैसे कहाँ से आते हैं? We link the bank account with Paytm, और Paytm वाले उससे एक्सेस करके उससे पैसे निकाल लेते हैं. So what are we doing? आप उससे हम अपना रिचार्ज भी करते हैं Paytm से, हम पेमेंट्स भी करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट भी कुछ लोग करते हैं, टेलीफोन चार्जेस तो ऑब्वियसली रिचार्ज वगैरह करते हैं, और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती है, यू डू इट विद Paytm. सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग? जो आप Paytm के थ्रू करते हो वो आप नॉर्मल अपने बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो. सो इफ यू गो टू योर ICIC ऐप या फिर HDFC का ऐप, ये सब ऐप स्टोर पे सबके ऐप्स आ गए हैं, राइट. सो इफ यू एक्सेस एनी ऑफ द ऐप्स ऑफ एनी ऑफ द बैंक्स, तो उसमें क्या होगा? आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखाई देंगी. सो जस्ट इन केस यू वांट टू पे एनी ऑफ योर चार्जेस, या होम लोन आपको लेना है, तो यू कैन डू इट वर्चुअली ओनली, राइट. ओके, let me just, yeah, so we were discussing about the insurance premium and the phone charges, right. So when we talk about this one, allied services का मतलब क्या होता है? बिल्कुल additional services and personal services. अभी आपको पर्सनली तो आपको होम लोन हो गया, आपको एजुकेशन लोन हो गया, it is all connected to your personal service. Okay, this is an additional benefit that is being given to the customers by what? By basically these banks, right. अच्छा, अब ये तो हो गए हम लोगों ने. लेट मी जस्ट गो बैक. वी डिस्कस्ड अबाउट द सेकेंडरी फंक्शंस. 3 होते हैं. चेक होता है, डीडी होता है, दैट इज रेमिटेंस ऑफ फंड्स, एंड थर्ड वन इज allied services, right. Now we are coming to e-banking. Now most of you must have seen e-banking. आजकल obviously lockdown is going on, nobody is going out, mostly people are at home only. Till now the people are not going too much out. Okay, so what happens is everybody is doing e-banking. That means किसी को भी अगर कुछ भी ट्रांसफर करना है पैसे, या किसी को भी कुछ भी करना है, so they are doing it with phone, they are doing it with the application, right. And now the tech friendly हो गए हैं सब लोग इतना, and everybody is too much using of using internet and everything, that everybody has switched over to, rather than going on to a bank and waiting in lines and meeting a lot of people, it's better to just sit at home and do it at phone, in quick time. So when we talk about e-banking, let's start what it actually means and what does it happen. So e-banking, इसकी अगर हम बात करें full form की, तो उसका मतलब होता है electronic banking और internet banking, right. Any user can get connected to the bank's website to perform banking operations, services with the help of a computer or mobile phone. Now obviously each and every bank has opened up a certain site. ठीक है, सबकी सब बैंक्स की अपनी अपनी साइट है. ये तो SBI का है, HDFC, ICIC, येस बैंक, एक्सिस बैंक, एवरी बैंक इज हैविंग देयर ओन साइट्स. आप गूगल पे सर्च करोगे, यू विल सी दैट साइट. ओके, वहां पे जाके यू नीड टू एंटर द यूजर नेम एंड द पासवर्ड. अब ये कैसे जनरेट होता है? ये बेसिकली जनरेट होता है जब आप अकाउंट बनवाते हो, तब आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है. बट सडनली कभी कभी क्या होता है, पीपल डोंट हैव दिस, सो एवरीबडी नोज हाउ टू साइन अप, right. Usually you do it on social sites also, social networking sites, on other sites as well. So you sign up for the same. तो आपका OTP आएगा, generate होगा OTP, and then every detail will be visible. Again this happens with mobile phone also. Mobile phone में कैसे? In the form of applications. When we talk about app store होता है, Google store होता है, जो भी, उसमें आपको हर एक एप्लीकेशन मिल जाएगी हर एक बैंक,
So from there you are able to access it very very properly, और उससे आप transfer of funds या अपनी पासबुक चेक करना. पासबुक इज बेसिकली अ स्टेटमेंट विच शोज कि आपने कितना खर्चा किया है अभी तक अपने बैंक अकाउंट में से, कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे गए हैं, उसको हम बोलते हैं पासबुक. ठीक है. सो पासबुक को देखना through that particular app. So that means in short, all the details, जो भी आपको details चाहिए about your bank account, it is easily and readily available on your tips in your mobile phone or your desktop, right? On your computers or laptops, right? With such a ease, जिससे कि कोई problem भी ना हो, and within seconds the payment is done, right? तो इसको हम बोलते हैं basically what? This is basically internet banking or e-banking, which is known as electronic banking, right? लेट्स प्रोसीड. अब हम बात करते हैं ई बैंकिंग सर्विसेज. अब ई बैंकिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है? ये तो हमने बात करी एप्लीकेशन और इन सब की. एंड नाउ जस्ट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नेवर सीन एटीएम? किसने कभी भी एटीएम नहीं देखा? इज देयर एनीवन हु हैज नेवर सीन एटीएम? एटीएम इज बेसिकली ऑटोमेटेड टेलर मशीन. इज देयर एनीवन जिसने कभी भी एटीएम नहीं देखा? लेट मी जस्ट नो. So I did not get any text. That means fine. So nobody, yeah, I think no one is there who has never seen any. Okay. So most of you have already seen ATM. अब ATM होता क्या है? ATM का मतलब होता है automated teller machine. अब how many of you have actually accessed ATM? किसी ने कभी जाके withdraw करे हैं पैसे ATM से? Have you ever seen? या चलो खुद ना करे हो, you have been with your parents or somewhere. With someone to just see what exactly happens with this machine. So yeah, I'm getting a lot of text. Ankita, Anshika, Samay, Paridhi. So you have been through Nilima. Okay, so you guys know what exactly happens in there. Okay, so for those who have never visited it, let me tell you what it exactly does. It is nothing but a certain machine जिसके अंदर बहुत सारा cash होता है, right? अब cash ऐसे तो नहीं मिलेगा, right? We are not robbers. Okay, so what we do it, we go in there, right? सबको एक एक पिन मिलता है अपने अकाउंट का, हर एक को पिन मिलता है. एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है हमारा. सो व्हाट यू डू इज यू पंच दैट कार्ड पर्टिकुलरली. ठीक है, कुछ डिटेल्स होते हैं वो आप एंटर करते हो एंड देन आप उसमें अपना पिन डालते हो. ओके, सपोज आई वांट टू विड्रॉ 100 रुपीज. सो आई एम गोइंग टू राइट माई पिन इन देयर एंड आई एम गोइंग टू एंटर इट और फिर कैश निकल के आ जाता है. सो इससे क्या होता है, रादर देन गोइंग ऑन टू द काउंटर, बैंक काउंटर पे जाके आप उनसे बोलोगे कि आई वांट टू विड्रॉ, इसमें इजी मेथड हो जाता है, राइट? सो एटीएम्स हर जगह होते हैं. एटीएम इज वेरी रेडिली अवेलेबल नाउअडेज. ईच एंड एवरी बैंक हैज देयर ओन एटीएम. अगेन लेट मी टेल यू दैट आल्सो. आईसीआईसी का अपना एटीएम होता है, एचडीएफसी का अपना एटीएम होता है, सबका अपना अपना एटीएम होता है, राइट? सो वहाँ पे होता क्या है, उससे बेसिकली हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, राइट? यू गेट मनी आउट ऑफ इट. सो दिस इज अगेन टेक्नोलॉजी. It is technology only. No person is there. Let me just tell you this also. E-banking क्यों है electronic banking? क्योंकि जितना भी काम हो रहा है ये मशीन से हो रहा है, right? No person is there to tell you. Guard होते हैं, right? But no person is there exactly to handle this particular machine. All the things are being done with this particular machine only. यही आपसे details पूछेगी, यही आपसे pin लेगी, and this is only going to give you cash out of it, right? So the name is ATM. And the full form is automated teller machine, right? The next one is EFT. Now what is EFT? EFT is basically electronic fund transfer. Now electronic fund transfer क्या हो गया, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, I'm sitting here, I have a mobile application in my phone, मेरे पास SBI का account है, let's just suppose, and I want to transfer 100 rupees to Ankita, okay, and she has a bank account in ICICI Bank. So what I will do is मैं अपना SBI का ऐप खोलूंगी. I will write all the details. अंकिता से मैं उसकी डिटेल्स ले लूंगी कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दो मुझे, राइट? एंड बाय सिटिंग एट होम ओनली, चाहे मैं लैपटॉप पे करूँ या मैं मोबाइल फोन पे करूँ, राइट? आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दैट फंड इलेक्ट्रॉनिकली टू द अदर पर्सन, टू अंकिता, राइट? सो अगेन what is involved? No person guided you about the same. It is all about the टेक्नोलॉजी. नो पर्सन इज देयर. आप बैंकिंग काउंटर पे जाके नहीं बोलोगे अच्छा मेरे को अब टेक्नोलॉजिकली अब मैं ट्रांसफर करती हूँ. यू डोंट नीड टू गो टू बैंक. यू कैन बी एनीवेयर एंड यू कैन जस्ट ट्रांसफर फंड्स बाय सिटिंग इन देयर. दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. As self-explanatory by the name also, electronic, which is basically we are using the gadgets, we are using the technology. Fund, that is basically the money which is involved.
Transfer, that means obviously I'm shifting my money from my side to another side, or it could be vice versa also. Ankita को अगर मुझे पैसे देने हैं तो she could also do that, right? So it is all basically electronic fund transfer which we discussed earlier. अब ये application से भी हो सकता है, and ये आपके banking sites खोल के, and those I was telling you this particular site होती है सबकी अपनी, and you need to register on it, so उससे भी हो सकता है. So it is a two-way thing, right? It is basically electronic fund transfer. Next is POS, that is point of sale. Now point of sale जो यहाँ पे ये machine है, ये तो I am dead sure that you must have seen, कभी ना कभी तो देखी होगी. You go to any of the good showrooms, you go for shopping, you go at even nowadays the these, what do you say, the essential shops are also having this machine. अब वो आपसे पूछते हैं मैम you want to pay in cash or card. अब मैं बोलूँगी I don't have cash, so I'll pay by card. तो क्या होता है, ये मशीन होती है उनके पास, वो क्या करते हैं, इस मशीन से स्वाइप करते हैं हमारे कार्ड को. दे स्वाइप आवर कार्ड विद दिस पर्टिकुलर मशीन एंड दे आई राइट माय पिन, और वो क्या होता है, वो उनको पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. हाउ इट इज डन, बाय दिस पर्टिकुलर मशीन. अगेन नथिंग वाज इन्वॉल्व, मैं बैंक नहीं गई, मैंने वहां से ट्रांसफर नहीं किया, बट ये पर्टिकुलर एक छोटी सी मशीन है जिसमें मुझे अपना पिन लिखना है, एंड आई पुश दिस ग्रीन बटन which will enter the transaction, and the money will be shifted and the money will be transferred. How many of you have seen this particular machine, point of sale? Okay, so I'm getting a lot of text. Yes ma'am, I've also seen. Okay, fine. So yeah, this is actually common nowadays. I can see a lot of shops, even small shops are also having this one. Okay, so इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, you just need to slide your card and then आपकी details होंगी, तो you just need to enter the amount, जितनी भी amount आपको transfer करनी है, and you need to enter your OTP. Sorry, OTP नहीं, PIN, right? So आप जो आपका PIN होता है आप उसको enter करते हो and the transaction is done. So again this is e-banking. कितना easily सारा काम हो गया बिना किसी hassle के, बिना किसी problematic situation के, and time भी कम लगता है. You don't need to go to bank, आप branch जाओगे फिर आप transfer करोगे. It is a quick thing. Okay, it happens quickly. Next is electronic data interchange. Now what is electronic data interchange? Let me just tell you one thing. Let's take an example. How many of you have used Amazon? Amazon is a site everybody knows, right? Amazon से सबने एक बार तो shopping करी हो. Okay, yes. So I'm getting a lot of yes. ठीक है. So Amazon everybody knows Amazon क्या होता है. अब उससे क्या होता है, अब मुझे Amazon में अगर पे करना है तो क्या करती हूँ मैं, Amazon में मैंने कार्ट में डाल दिया, I want to buy this particular thing, मैंने उसको कार्ट में डाल दिया. फिर मैं क्या करती हूँ, जब मुझे उसको पे करना है, उसको पे करने के लिए तो वो पूछता है या तो आप Amazon वॉलेट होता है एक, आप या तो Amazon वॉलेट से पे करो या फिर डू इट विद योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. अब वहां पे काम आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब क्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, दैट आप किसी से टाई अप कर रहे हो. टाई अप इन द सेंस, Amazon वालों से जो बाकी सारे बैंक्स हैं उन्होंने टाई अप कर लिया कि हमारा अगर कोई भी कस्टमर है, ही वांट्स टू पे द मनी, सो वो आप Amazon के थ्रू यू लिंक आवर साइट एंड देन द पर्सन कुड पे. लेट मी टेल यू हाउ. मैंने कार्ट में कुछ रखा, राइट, सपोज आई ऑर्डर्ड सम स्टेशनरी. अब मुझे वो स्टेशनरी चाहिए, आई वेंट ऑन टू डूइंग द पेमेंट. अब पेमेंट के लिए मैंने उसमें रखा ठीक है डेबिट कार्ड से आई विल पे. अब वो क्या पूछेगा, if you if you just want to see, I'm not asking you to order something, but just to see कि कैसे होता है, you can just go and do it after the class. ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा, वो आपकी डिटेल्स मांगेगा, डोंट एंटर द डिटेल्स. ठीक है, सो वो आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, वो आपका नेम मांगेगा, और CVV होता है. CV इज बेसिकली CVV. ठीक है, CVV क्या होता है, बैक ऑफ द कार्ड में लास्ट 3 डिजिट्स जो होते हैं ना पीछे लिखे हुए, उसको CVV बोलते हैं. हाँ, एग्जैक्टली राइट आर्यन, द लास्ट 3 डिजिट कोड. ओके, सो उसको हम CVV बोलते हैं. तो वो कुछ डिटेल्स होते हैं वो आपसे मांगेगा, एंड देन आपका मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर्ड होगा, सो आपके पास OTP आएगा. अब जो आपको रीडायरेक्ट करेगा, रीडायरेक्टिंग होता है ना, किसी और साइट पे लेके जाते हैं, तो वो Amazon से वो आपको अपने बैंक की साइट पे लेके चला जाएगा. अब अगर मेरा अकाउंट ICICI में है तो वो ICICI की साइट पे ले जाएगा. अगर मेरा बैंक अकाउंट SBI में है, सो आई विल गो टू SBI साइट. तो जिसका भी होगा, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दैट पर्टिकुलर बैंक साइट, और वहां से OTP डालते ही पेमेंट डन. What is this? Electronic data interchange. That
The banks have actually linked themselves with certain, apps or certain data which the customers are using very frequently, right? So all the people who want to use their particular card in order to do the payment, उनको easy हो जाएगा. अगेन मैं कहीं गई नहीं, मैं बाहर नहीं गई किसी बैंक अकाउंट में या किसी भी ऑफिस में या किसी भी एटीएम पे पैसे निकालने. व्हाट डिड आई डू? आई वाज सिटिंग एट माय होम and I just entered some details. I entered the OTP and done. The transaction is done. So again, it is electronic data interchange. That means अगर आप एक चीज यूज कर रहे हो, if you see two desktop, so अगर मैं एक चीज यूज कर रही हूँ, so it will redirect itself to the बैंक साइड. दैट मीन्स बैंक ने अपने आप को इतना लिंक कर लिया है और चीजों से. ओके, चलो लास्ट पढ़ते हैं क्रेडिट कार्ड. अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की. तो यूजुअली क्या होता है, जब हमारे पास बैंक अकाउंट आता है तो हमें दो चीजें मिलती हैं. पहला तो डेबिट कार्ड तो मिलता ही मिलता है. क्रेडिट कार्ड आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलता है. कैपेसिटी इन द सेंस, अब क्रेडिट कार्ड हर किसी को तो नहीं देते. अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है, यहाँ पे अगर मैं डेबिट कार्ड की बात करूँ, डोंट लिंक इट विद योर अकाउंट्स. डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं एंड आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर मनी. ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपीज है और मैं उससे शॉपिंग कर रही हूँ, वो डेबिट कार्ड होगा. ठीक है, कि मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं एंड आई एम यूजिंग इट. क्रेडिट, अगेन क्रेडिट क्या मतलब होता है? क्रेडिट का मतलब होता है लोन. अब क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि आपको बैंक ने प्रोवाइड कर दिया कि मैम आपकी क्रेडिट कार्ड ले लो आप ये, ठीक है, और आपकी लिमिट हम रख देते हैं 1,00,000 रुपीज. ठीक है, अब आपको जो भी शॉपिंग करनी है आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर लो. बट दैट इज नॉट माई मनी. मुझे ये पैसे रीपे करने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली अ लोन टू मी. इट इज अ काइंड ऑफ लोन. सो यूजुअली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हम लोग को बैंक प्रोवाइड करता है, right? It is also an additional service or additional function you can say, or additional feature you can say, which benefit you can say a bank is providing to its customer. क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हो गया कि they are providing me the card. अब मैं इसको स्वाइप करके मैं सारी शॉपिंग कर सकती हूँ. I can do whatever I want, but I need to repay that money. It is not my money. ये मैंने तो कोई पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करे अभी तक, राइट? इट इज गिवन बाय द बैंक और उसकी लिमिट सेट होती है. अब ऐसे तो कोई कितनी भी शॉपिंग कर लेगा, नहीं. आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करके आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट करी जाती है. ठीक है, अब किसी के क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है 25 lakhs, किसी की क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है 1 lakh. सो इट डिपेंड्स ऑन योर योर थिंग. दैट मीन्स योर थिंग एज इन यू नीड टू सी दैट इट इज appropriate or not, और वो आपको पूरा बैकग्राउंड चेक करके उसके बाद आपकी लिमिट सेट कर. राइट, सो डेबिट कार्ड इज बेसिकली व्हाट आई एम हैविंग that is being used, and credit card is basically मैंने बैंक से एक तरह से लोन ले रखा है, राइट? दैट मीन्स जितनी भी मैं शॉपिंग कर रही हूँ, अभी तो मैंने क्रेडिट कार्ड से 45,000 की शॉपिंग कर ली सपोज, सो आई नीड टू पे दैट मनी, राइट? दिस इज बेसिकली क्रेडिट कार्ड. So this is again one additional benefit that is being provided by the bank to all of us, right? To its customers basically, not all of us, but certainly the customers in whom, right? So here we stop. We are going to study about the benefits of e-banking tomorrow, right everyone? And also